بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا پروگرام ہے مہنگائی کا جن کس طرح قابو آئے گا۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے سماجی و سیاسی شخصیت جو کہ سابقہ امیدوار پی 57 کے MPA کے الیکشن کے امیدوار بھی تھے۔ آج شہباز انجینئر صاحب ہم ان سے بات کریں گے کہ مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے کچھ دیر قبل جو ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو ہے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا تھا۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ہمارے گجرانوالہ DC گجرانوالہ وہ کس حد تک جو ہے نا مہنگائی کنٹرول کر سکی ہیں۔ اس سے اب بات کریں گے شہباز انجینئر صاحب سے۔ جی شہباز صاحب آپ بتائیں۔ جی بہت بہت شکریہ مظہر بھائی، آپ کا بھی اور آپ کے جو چینل ہے نیوز پیپر ہے، میں سب کا تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مہنگائی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار خیال کرے۔ تو میں یہاں پہ اس شعر کے ساتھ آغاز کروں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، جسے نہ ہو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اس وقت بہت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت عوام کا جو ہے نا وہ مہنگائی کے جو جن جو ہے نا وہ بے قابو ہو چکا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا عوام کو مہنگائی کی چکی میں سمجھتا ہوں نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو آپ بلیو کریے گا کہ اس وقت کچھ تو یہ آپ دیکھیں کہ پچھلے ایرا میں آٹے کا کیا ریٹ تھا، گھی کا کیا ریٹ تھا اور دوسری چیزوں کا کیا ریٹ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی کا جو جن ہے وہ اس طرح کا بے قابو ہو چکا ہوا ہے کہ جس دکاندار کا، جس بندے کا بھی جو مرضی دل چاہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے انتظامیہ کی، کوئی پرواہ نہیں مجسٹریٹ کی، کوئی پرواہ اچھا نہیں یہ DC بتائیں کی۔ ذرا مجھے کہ یہ جو کنٹرول کمیٹیاں ہیں، مجسٹریٹ ہے، کنٹرول مجسٹریٹ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں شہر میں؟ یہ صرف ایک کام کر رہے ہیں جو کہ بہت زبردست کام ہے ان کا، جس پہ ان کو انعام بھی ملتا ہے، اور وہ کام ہے فوٹو شوٹ، فوٹو سیشن۔ اچھا آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف فوٹو کی حد تک جو ہے نا مہنگائی کو جو ہے نا کنٹرول کرتے ہیں، جی، اس کے علاوہ نہیں کنٹرول کر رہے۔ مارکیٹ میں جاتے ہیں، لوگوں کو 50 ہزار روپیہ، لاکھوں روپیہ جرمانہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو دکاندار ہے، وہ جو مارکیٹ کا بندہ ہے، وہ جو جرمانے ہیں وہ غریب لوگوں سے زیادہ مہنگائی کر کے جو ہے نا وہ پورا کرتا ہے۔ اچھا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دکاندار کو مجسٹریٹ جو ہے کنٹرول مجسٹریٹ مہنگائی وہ اگر جرمانہ کرتا ہے زیادہ جی جی، تو وہ جو ہے وہ عوام سے ہی نکالتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں دکاندار۔ وہ عوام کا جو ہے نا وہ چومر نکالتا ہے دو شکلوں میں۔ پہلی تو شکل ہے کہ وہ مہنگی چیزیں بیچتا ہے، دوسری چیز جو ہے وہ کم تولتا بھی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، میں آپ محلے میں ایک بندے سے دہی خریدنے گیا تو میں نے کہا یار آج اس کا دہی چیک کر لوں۔ جو ہی دہی مہنگا تو ہے ہی ہے، مگر جب میں نے دیکھا کہ یار یہ پورا ہے بھی کہ نہیں، تو جب میں نے وہ چیک کیا تو وہ ناپ تول میں بھی کمی کر رہا تھا۔ تو پھر میں نے اس کو جا کے بتایا، میں نے کہا چلو اس کو مورلی میں آگاہ تو کروں۔ تو مجھے وہ کہنے لگا کہ جناب، میں نے کہا یار آپ کا دہی کم ہے، تو مجھے کہنے لگا جناب جتوں تمہیں پورا ملتا ہے اتوں لے لو جا کے۔ تو اتنا کچھ جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا، کیونکہ انتظامیہ کی پرواہ کوئی نہیں ہے کسی کو، تو وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو، کوئی سانو پوچھنے والا کوئی۔ اچھا مجھے یہ ایک بات اور بتائیں، اس وقت نان کا، روٹی کا جو ریٹ ہے وہ اپنی من مرضی سے جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ کوئی 25 روپے کا نان دے رہا ہے، کوئی 30 روپے کا دے رہا ہے، اور روٹی کوئی 12 روپے کی دے رہا ہے، کوئی 15 روپے کی دے رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ DC یا دوسرے ادارے جو ہیں یا انتظامیہ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت جو ضلعی انتظامیہ کی جو کارروائیاں ہیں جو پچھلے دنوں میں، پچھلے ماہ میں جو ہے نا وہ ہوئی ہیں، تو میرے پاس جو فگر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 10,519 چھاپے مارے۔ کتنے سر جی؟ 10,000
519 छापे मारे हैं और उसमें 290 जो अफराद थे, 290 अफराद को 11,84,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना किया। अब 10,000 छापे मारने के बावजूद शहर में महंगाई कंट्रोल ना हो, सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ रेवन्यू आंदा रहे और वो फिर आवाम चो ही उन्होंने कटना होता है। सर हमें इस तरह का मजहर भाई, हमें इस तरह का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, कमेटियां इस तरह की बनानी पड़ेंगी जिससे जो है ना वो आवाम को रिलीफ मिले। डीसी साहब ने कमेटियां तो बनाई हुई हैं, ओह ये सर, कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी बनाए हुए हैं। मैं आपको ये ईमानदारी के साथ अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जन के बात करने लगा हूँ। एक मुझे सरकारी अफसर, आला सरकारी अफसर ने मुझे डीसी दफ्तर में बुलाया, मुझे कहने लगा यार हमने ना ये अपना जो है ना ये एक कमेटियां बनानी है, सार्फिन के हकूक की कमेटियां बनानी है, तो हमें बड़ी खूबसूरत सी लड़की चाहिए। तो अब जो है ना जिसको हमने कमेटी में शामिल करें, अब मैं उस उधर बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये मेरा नाम सुजेस्ट करेगा, चलो हम भी कुछ समाजी तौर पे कुछ काम करने वाले लोग हैं, चलो हमारा। अब जो ये जो कमेटियां बनती हैं इसमें कम से कम शर्त होनी चाहिए कि जो है ना वो बंदा इनको चाहिए जो बंदा बोलने वाला ना हो, जो बंदा खामोशी के साथ जाए, कमिश्नर के साथ, डीसी के साथ या आला अफसरान के साथ सिर्फ फोटो सेशन बनाए और चाय पिए और बिस्किट खाए और घर आ जाए। आवाम की किसी को कोई परवाह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, आवाम जाए भाड़ में। जिला इंतजामिया ने सिर्फ जुर्माने करने हैं और घर आ जाना है और वो जरा सारा जुर्माना है वो लोगों के उत्ते कन्वर्ट होना। क्या आप समझते हैं कि ये जुर्माने करने से जो है महंगाई जो है वो कंट्रोल हो जाएगी? नहीं सर, इस हवाले से आप जुर्माने करें, आप पर्चे करें, जो मर्जी कुछ करें। अच्छा, इसके हवाले से अगर आपके पास कोई थ्योरी है या कोई प्लानिंग है तो वो हमें बताएं, या डीसी साहब इंतज़ामिया भी इंशाल्लाह ये सब प्रोग्राम देखेंगे, लोग भी देखेंगे हमारा प्रोग्राम। आपके पास अगर कोई प्लानिंग है, कोई थ्योरी है तो आप इंतज़ामिया को और दुनिया को, लोगों को बताएं किस हवाले से जो है ना महंगाई कंट्रोल हो सकती है और किस तरीके से की जा सकती है। भाई इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक डीसी साहब का तल्लक है तो मैं देख रहा हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पे वो अफसरान के साथ मीटिंग्स भी कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी ले रही हैं। मगर सर मैं समझता हूँ कि ये जो, और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ ईमानदारी के साथ, जो मैंने ज़ाती तौर पे देखी थी, एक आला अफसर जो है ना वो, मैं मंडी में एक दिन छुट्टी थी मुझे, तो मैं सौदा सरफ लेने गया हूँ कि चलो यार इधर कोई सस्ती चीज़ मिलेगी। अब वहाँ भी जो है ना वो अत मची हुई है, मंडी में भी जो है ना जस्ट एक फर्जी रेट लिस्टें जो है ना वो बना दी जाती हैं, उन पे मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अपना तस्वीरें लगा लेते हैं, डीसी साहबा की फ़ोटो लगा ली, कमिश्नर की भी फ़ोटो लगा ली, मगर उसमें जो आपको कोई चीज़ भी जो है ना वो मार्केट में नहीं मिलेगी। तो अच्छा, उधर तो मार्केट कमेटी के लोग भी बैठे हुए हैं, मार्केट कमेटी के लोगों ने, डीसी ने, कमिश्नर ने ये जो रेट है जी जी ये मुकर्रर करने होते हैं, इसमें आपका क्या समझते हैं? आपके कोई वहाँ पे डीसी कमिश्नर रेट मुकर्रर नहीं करता। वहाँ पे जनाब एक हमारा बंदा सा उन्होंने रखा हुआ है, वो पूछता है जनाब क्या रेट मुकर्रर किया जाए। ये लोग डीसी ऑफिस से या कमिश्नर ऑफिस से जाते हैं, इन्होंने जस्ट फोटो सेशन करना है और घर आ जाना है। मैं खुद इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ। एक दिन कि वो वहाँ पे एक अफसर आया है, उसका मैं नाम नहीं यहाँ पे बताऊंगा, तो वो आया है, तो बताए नाम आप, इसमें क्या बात है? जी मैं, चले आप नाम भी पूछना चाह रहे हैं, अली अकबर भिंडर साहब थे जो इधर साहबका एडीसी आ रहे हैं, वो गए हैं वहाँ पे, गाड़ी से उतरे हैं, उन्होंने मार्केट कमेटी को बुलाया है और मेरे सामने वो, मैं वहाँ पे सौदा सरफ लेने गया हुआ था, मेरे सामने उन्होंने फोटो शूट किया। फोटो शूट करने के बाद जनाब गाड़ी में बैठे हैं तो घर गए हैं। तो ये तो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो अवाम कहाँ जाए मजहर भाई? तो ये अवाम देखें, जो ये सियासतदान है जी जी, जो महंगाई के नाम पे वोट लेते हैं जी जी, कि हम महंगाई कम करेंगे, आप लोग हमें वोट दे, जी जी, तो अवाम क्यों वोट देती है ऐसे लोगों को जो कि महंगाई कंट्रोल करने में जो है? लास्ट टाइम मुझे अभी तक मेरे ज़हन में वो पिक्चर आ रही है, ये नून लीग की तरफ से भी जो है ना ये एक महंगाई कंट्रोल मार्च जो है ना वो इस्लामाबाद तक गया है। वो महंगाई कंट्रोल मार्च नहीं था, वो जस्ट उनका एक अपना मार्च था, ताकि उनका एक अपना उल्लू सीधा हो, उनकी गवर्नमेंट हाथ में आए। अब देखें, अब कौन सी जमात जो है वो अपना उसमें नहीं है, ठीक है ना?
नून लीग इस वक्त वफाक में है, सारी जमातें जो हैं सारी जमातें इस वक्त सियासत में सरदार हैं, हैं, ठीक है ना। सियासत में अब हैं, इनको मगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। सर अवाम को रिलीफ उसी शक्ल में मिलेगा जब ये लोग, ये जो हमारे अफसरान है, ये नेक नीति के साथ, अच्छा, दिल के साथ। निचली सतह पर अगर हम देखें, जिस तरह डीसी साहब बैठी हुई हैं, जी, जी। सी साहब है, इनको तो चाहिए ना ये महंगाई पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस पे फोकस करें और कंट्रोल करें, क्योंकि गरीब आदमी जिसकी 25 हज़ार रुपया तनख्वाह है, वो उसने बिजली का बिल भी देना है और अपने घर का निज़ाम भी चलाना है, वो किस तरह चलाएगा? देखिए सर, इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं। ज़िले इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि जब भी किसी आप ये जो आपने 10,519 छापे मारे हैं, इन लोगों को पकड़ा है, मेरी इसमें राय ये होगी कि कम से कम उनसे एक स्टाम्प लिखवाया जाए, स्टाम्प पेपर लिखवाया जाए कि भाई अब तुम्हें ये हम जुर्माना कर रहे हैं, अगली दफ़ा तुमने अगर ये काम किया तो तुम्हें हम जेल भेजेंगे। अगर वो फिर भी नहीं होता तो उसके लिए कोई और सज़ा मुकर्रर हो। तो मैं समझता हूँ ये जो स्टाम्प पेपर वाला जो आइडिया है ना, ये कम से कम स्टाम्प पेपर तो वैसे तो कचहरी में भी चले जाए तो 50 रुपए का डीसी की नाक के नीचे वो 200 रुपए का बिक रहा होता है, मगर ये स्टाम्प पेपर को जो है ना, ये मैं समझता हूँ अवामो नास की फलाह बहबूद के लिए अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसमें जो है वो कम से कम ये जुर्माना भी उसको हो और उससे जो है ना रिटन एफिडेविट लिया जाए कि इसके बाद तुम्हारी दुकान सील होगी, इसके बाद तुम जेल भी जाओगे, इसके बाद तुम्हारे साथ ये भी कुछ होगा। इसके जब सजाओं का अमल जो है ना वो बेहतरीन होगा और तब भी जो है ना अवाम को जो है ना ये महंगाई की चक्की से जो है ना वो रिलीफ मिल सके। तो इस हवाले से आप बताएं हमें कि आप दोबारा महंगाई जो मार्च शुरू करेंगे, महंगाई एहतजाज जो है आपने पहले भी किया है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज और बिजली बिलों के खिलाफ आपने एहतजाज किया था। अब महंगाई के बारे में आपका क्या राय है? आप कोई एहतजाज करेंगे या डीसी साहब को कोई पैगाम देंगे? मैं मोहतरमा हमारी जो डीसी साहब हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो है ना, ये जो आपकी नाक के नीचे जो अफसरान जो काम कर रहे हैं, ये मौके पे जाके जुर्माने भी करते हैं और बदमाशी भी करते हैं, तो काइंडली इनको कोई मॉरल लेसन दिया जाए कि ये जो है ना ताकि प्योरली अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करें। और इंशाल्लाह हम अनकरीब, मेरी गुजरांवाला के अवाम से अपील है कि कम अज़ कम इस वक्त जो आपका हाल हो चुका हुआ है, आपका तो कुछ उम्र निकल चुका हुआ है, बाहर आना चाहिए अवाम को। आपको अब कहने का आपको मतलब काइंडली खुदारा हम अनकरीबी इसकी कॉल देने जा रहे हैं महंगाई के ऊपर, ठीक है ना। मुझे नहीं पता ये सियासी जमातें जो हैं ये क्या करेंगी, ठीक है ना, कोई क्या कुछ कर रहा है, कोई क्या कुछ कर रहा है। तो बाकी हम इंशाल्लाह प्योरली अवामी फलाह बहबूद के लिए अपना एक जो है ना गुजरांवाला में इंशाल्लाह एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अनकरीबी अगर हो सके हमें डीसी ऑफिस की तालाबंदी करनी पड़े, अगर कमिश्नर ऑफिस की तालाबंदी करनी पड़े या किसी भी फोरम पे जाना पड़े, अगर इन्होंने अवामुन नास को रिलीफ ना दिया तो हम इंशाल्लाह कोई ना कोई स्टेप जो है वो अडॉप्ट करेंगे। अगर मेरी खुदारा आपको नहीं, अवामुन नास को किस तरह का रिलीफ मिलना चाहिए ये तो बताएं। सर उनको रिलीफ ये मिलना चाहिए कि कम से कम जो महंगी चीजें बेचने वाला है उसका कोई प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन निकाले। वो जो देखें, कमेटियां वो तो सर जो कमेटियां बनी हुई मेरी हैं, बात सुनो, वो तो देखे ना, वो तो उन्होंने सारा जो ना टीम वर्क किया हुआ है। जी आप कहेंगे कि जनाब अवामुन नास को जो है ना रिलीफ दें, जी तो हम जो है देखें चलान कर रहे हैं, जेलों में भेज रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फोटो सेक्शन हमारी, आप खबरें भी हमारी देख रहे हैं, जी जी वो तो आपको मुतमिन करेंगे सर हर तरीके से। सर जब तक आपका शहर में एक ईमानदार लोगों का, सच्चे और सुच्चे लोगों का ग्रुप फॉल नहीं होगा, जो इनकी प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उसमें अच्छे लोग नहीं जाएंगे, ईमानदार लोग नहीं जाएंगे, काबिल लोग नहीं जाएंगे। इस वक्त आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटियों की आप सीवी तो चेक करें कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, किन किन लोगों को आपने, सिर्फ वही लोग हैं जो आपके साथ चाय पीने आते हैं, वही लोग हैं जो आपके साथ फोटोशूट करते हैं, बस दैट्स ऑल। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपको महंगाई प्राइस कंट्रोल के ऊपर कोई आपको अच्छी सजेशन दें। तो वक्त कम है, 1 मिनट में आपने सारी बात खत्म करनी है, 1 मिनट है आपके पास। आप इंतजामिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, इस बारे में हमें बताएं। मैं इंतजामिया को बस यही मैसेज दूंगा
کہ کائنڈلی زندگی ایک دفعہ ہی ملنی ہے، تو کائنڈلی اپنا رول ادا کریں، اپنے حصے کا دیا جلائیں، تاکہ مرنے کے بعد آپ کو بھی کوئی بندہ یاد کرے کہ یار یہ بندہ آیا تھا اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر گیا۔ تو خدا را اپنے حصے کا دیا جلائیں اور اپنی شمع روشن کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا اس ملک کے لیے کریں گے۔ اچھا جی، آپ نے شہباز انجینئر صاحب کی پروگرام میں گفتگو سنی مہنگائی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب کی ہم تالہ بندی کریں گے، اگر مہنگائی کا جن جو ہے اگر کنٹرول نہ کیا گیا، اس پر قابو نہ پایا گیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس پروگرام کا، اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔